Okay, beta, welcome back. Let's resume our discussion. The recording of the meeting is on now. So let's now see, after finding the position, how do we obtain the index error or the dip correction or height of I, whatever was the error in the site. How do we obtain that error? So let me set up the presentation. Are you able to hear and see me loud and clear? Yes, sir. Okay. Now we move on to the second part of the question, that is finding out the index error. Now the reason why a cogged hat is formed when we take three celestial position lines is due to an error. If there is no error, then all the three position lines would intersect at the same point, and there will be no triangle or no cogged hat formed. The triangle or cogged hat is formed only when there is an error in the observation, plotting, or calculation of the site. Now, we have learned how to resolve this cogged hat in two different scenarios: when the bearings are contained within 180 degrees and when the bearings are outside or not contained within 180 degrees. Now, in some of the questions, they will also ask you to find out the magnitude of the error which was present in the observation. So, how do we find out this error? Now, for finding out this error, you have to pick up any of the position lines. Any of the three PLs, any one of the three PLs can be picked up. For our example, let's pick up the first position line, the red color PL. We can use any of the position lines to find out the error. So in the example, we are using our first position line to find out what the error was. Now we have to draw a line which is parallel to this PL, and passing from the fix. So we pick up our parallel ruler or sliding ruler or set square, whatever tool you are using, and align it with our first PL, the red color PL. Shift it, transfer it to pass from the fix, and then draw a parallel line. Let's draw the parallel line in our plot. You can see the parallel line passing from the fix now. Now this line which we have drawn would be the accurate position line without any error, because this is the PL which is passing from the actual position of the ship. The red color PL had some error in it, and the maroon color PL which we have drawn now passing from the fix is the accurate PL or the exact PL without any error. Now once we have these two parallel lines in our plot, we have to find out the distance between these two parallel lines. The distance between these two parallel lines gives us the error in our site. So you can see this is the distance between the two parallel lines or the two position lines. This distance can be measured off using the scale on which this plot is made. So you can read off what is the distance between these two parallel lines. This gives us the
index error. So as you can see in the plot, this distance between the two parallel lines is the index error what we are looking for. This can be done with any of the three position lines. Irrespective of whichever position line you use, you will be getting the same index error. Whether you use the blue color PL, draw a parallel line here and find out the difference, or you use the green color PL, draw a parallel line and find out the difference. The index error will be the same in all the cases. सर ये आउटसाइड Reason being, वाले केस में ही है ना सर this सिर्फ ये? point which we have found, that is our fix. As per geometry, this point is equidistant from all the three sides of the triangle. So whether you find out the distance to the red PL or the blue PL or the green PL, in all the cases, the index error will remain the same. Go ahead, beta. What's your doubt? सर ये जो 180 से ज्यादा है उसी केसेस में है ना ये? बेटा दोनों केसेस में ये सेम मेथड एप्लीकेबल है. सर लेकिन जैसे सर जो 180 वाला है, जो विद इन 180 वाला है, उसमें ये PL जो है, जैसे फिक्स जो है वो नीचे आता है, आउटसाइड द ट्रायंगल आता है ना सर? राइट, दैट्स राइट. तो सर मतलब उसमें इंडेक्स एरर कंपैरेटिवली बड़ा ज्यादा नहीं रहेगा? बेटा ज्यादा है या कम, दैट डज नॉट मैटर. द मेथड रिमेन्स द सेम. मतलब सर जैसे हम अगर देखते हैं, जैसे ये आउटसाइड 180 था, आउटसाइड 180 था ना? राइट. हाँ, तो सर इसमें जैसे छोटा इंडेक्स एरर छोटा दिखता है. अब यही फिक्स अगर नीचे होता तो ये PL से जो इसकी पैरेलल PL है वो काफी दूर बनती, मतलब राइट. तो काफी ज्यादा ना होता इंडेक्स एरर, तो मतलब अब बेटा वो तो कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. हमें तो निकाल के आंसर लिखना है. ऐसे ही करना ना? ठीक है सर. हाँ, द मेथड रिमेन्स द सेम वेदर इट इज स्ट्रेचेस विद इन 180 और ग्रेटर देन 180. दोनों केसेस में मेथड बिल्कुल सेम है. मैं अभी इस स्लाइड के बाद आपको वो डायग्राम भी दिखाता हूँ. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू देयर ऑल्सो. The point where the angle bisectors of a triangle meet is equidistant from all the three sides of the triangle. So this is the triangle which we made when the bearing stretch was less than 180. So in this case, this is the fix. Now you can pick up any of the three PLs. Okay. So any of the three PLs can be picked and you draw a line parallel to that particular PL passing from the fix and you find the difference. That will give you the index error in this case also. सर ये दो PL से तो ठीक है, पर ये जो सेंटर वाली PL है ना CB, ये तो डिफरेंस एरर का दूसरा दे देगी ना, क्योंकि ये दोनों तो एंगल बाइसेक्ट हुए तो ऑब्वियसली एंगल बराबर हो गया तो डिस्टेंस बराबर हो गया. पर ये जो सेंटर वाली CB है वो तो उसको लाइन को बाइसेक्ट किया है तो वो उधर से तो बराबर है, पर ये एंगल के हिसाब से तो है नहीं, तो ये तो डिस्टेंस बीच वाला तो गलत हो सकता है ना. CF और CB तो बराबर हो गए, पर बीच वाला तो अलग हो सकता है ना इंडेक्स एरर. अगर CB को पैरेलल करेंगे तो फिक्स के. You mean to say कि जो ये वाला डिस्टेंस है going up to the blue PL, it will be different from the distance from red and green. Yeah, that's I'm asking. No, it will not be. अगर आप ये पॉइंट पे कंपास रखते हो और एक सर्कल ड्रॉ करते हो टचिंग एनी वन ऑफ द PL, वो सर्कल इन तीनों को टच करेगा. In other words, this fix is equidistant from all these three lines. सर मैं वही पूछ रहा था, जैसे ये जो CF वाला है और CB वाला है, ये तो एंगल बराबर थे, दोनों बाइसेक्ट किए तो इसलिए ये बराबर हो गए. एंगल बराबर होने की वजह से इक्विडिस्टेंट नहीं है.
नहीं सर ये एंगल बाइसेक्ट किए ना दोनों, ये वाले आउटर एक्सिस। इसका कॉज जो है वो ये नहीं है कि एंगल बाइसेक्ट किए हैं तो ये इक्वल हो गया, नो दैट इज नॉट द कॉज। ये जो हमने फिक्स बनाई है, आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिले आप उसमें प्रैक्टिकली इसको ट्राई करके देखो। जो आपकी फिक्स है वो तीनों की तीनों पीएल से इक्वी डिस्टेंट है। अच्छा ओके, यू कैन व्हाट यू कैन डू इज, आज ही ट्राई करना इसको अभी क्लास के बाद, एक ट्राइंगल बनाना, कोई भी एक ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल ऑफ योर लाइकिंग, और उस ट्राइंगल में दो एक्सटर्नल बाइसेक्टर और एक इंटरनल बाइसेक्टर बना के ये पॉइंट पॉइंट निकालना। ओके, और उसका डिस्टेंस तीनों से मेजर करना। ठीक है। राइट बेटा, डू इट प्रैक्टिकली एंड इफ इट कम्स एज डिफरेंट लेट मी नो। ठीक है बेटा? ठीक है सर, ठीक है, देखता हूँ सर इसे। हाँ बेटा, करके देखो इसको, और अगर डिफरेंस आए तीनों में तो मुझे बताना। ओके, और बेटा और डाउट बताओ। सो एवरीबडी नोज नाउ हाउ टू फाइंड आउट द इंडेक्स एरर। Yes, I got it. सर हाँ बोलो बेटा। सर ये तो बराबर तो आएंगी वैसे भी, मतलब जो पीछे वाला डायग्राम है ना सर, जी राजी। हाँ इसमें बराबर आएंगे। जैसे अगर ये जो ए पॉइंट है ना सर, हेलो, राइट राइट, ये पॉइंट है। राइट, हाँ ए पे अगर आप सी बी ट्रांसफर करते हैं बेसिकली ऊपर, तो सीबी एक, को मैं ए पे ट्रांसफर करता हूँ। हाँ तो ये वाला जो सी पे जो एंगल है वो ये सी ए और सी बी के बीच वाला एंगल हो गया, और बी ए वाला इधर वाला पूरा एंगल हो गया। तो ये इधर बराबर बराबर माइनस हो गए, जो सी बी लाइन है उसका ए पे ये वाला एंगल जो सी ए और इस तरफ इन दोनों का माइनस हो गया, तो इसलिए ये बीच का एंगल तीनों के बराबर हो गया, इसलिए फिक्स बराबर आ रहा है सर। बेटा हम्म, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। हम्म, मैंने तुम्हें ये बोला है कि जब तुम ये फिक्स निकालोगे तो ये ग्रीन ब्लू और रेड तीनों से इक्वी डिस्टेंट आएगी। अब तुम इसे प्रैक्टिकली अपनी नोटबुक में एक बार करके देखो, तुम्हें 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर ये ना इक्वल आए तो मुझे बताओ, मुझे व्हाट्सएप करो अपना प्लॉट और बोलो सर ये देखो ये इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है सर। ओके, खत्म हो गई कहानी। एंगल में जाने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना हमें, इजंट इट? वो हाँ सर, वो आप सही कह रहे हो, पर वो मैं ये सोच रहा था कि ये बराबर क्यों आ रही है, कि कोई तो रीजन होगा ना कि तीनों तो बराबर आ रही है, मतलब उसका कैसे रीज़न आ मैं रही है। तुम्हें बताता हूँ बेटा, उसका रीज़न मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके रीज़न के लिए तुम्हें 9th और 10th क्लास की ज्योमेट्री देखनी पड़ेगी। हम्म, ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली सरकम सर्कल का कॉन्सेप्ट है जो इसमें यूज़ होता है। सो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक इट इज़ इन क्लास 9th ऑफ सीबीएसई ज्योमेट्री। सो तब तुम्हें जाके समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है ओके, सर। इट सर इज़ सेंट्रोइड बोलते हैं ना जैसे इसे, आस्क अगेन बेटा। सेंट्रोइड बोलते हैं ना शायद इसको। नहीं नहीं, मीडियन को सेंट्रॉइड बोलते हैं, इसको सेंट्रॉइड नहीं। ये इन सर्कल का सेंटर रहता तो अंदर तीनों वर्टेक्स टच करते तो उसको सर्कम हाँ, सर्कल। ये एक सर्कल का है कॉन्सेप्ट। राइट, दैट्स राइट, दैट्स राइट। सो दो सर्कल बनते हैं, एक बनता है एंगल बाइसेक्टर से और दूसरा बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। एंगल बाइसेक्टर वाला जो है वो इन सर्कल या इन सेंटर कहा जाता है, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला होता है इट टचेस द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। सो अगर तुम्हें बेटा इसके डेप्थ में जाना है कि ये क्यों इक्वी डिस्टेंट है, तो फिर हमें 9th की ज्योमेट्री में जाना पड़ेगा। सो for time being you can just try out this concept, and if it doesn't work out just let me know. Okay beta? ओके सर। यस सर, यस सर। Okay, so everybody clear about the finding of the index error now? यस सर। Okay, अब बेटा इसके बाद भी एक चीज़ और आती है। हमने इंडेक्स एरर का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि इंडेक्स एरर ऑन है या ऑफ है, हम ये भी पता कर सकते हैं।
It is slightly tricky, slightly complicated. So थोड़ा ध्यान रखना 5 मिनट के लिए मेरी तरफ, and I will try to explain it to you. How do we find out whether it is off the arc or on the arc? मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया हमने. Let us say magnitude comes as 2.5. तो हमें पता चल गया index error is 2.5 minutes. But whether it is on the arc or off the arc, how do we find that? So just pay attention and you will understand. Okay, now we have obtained the magnitude of the index error. Now the second thing which we need to find, what is the sign of the index error? We know the index error of the sextant can be on the arc or it can be off the arc. So how do we find out whether this index error was on or off? Let's see. Now to find the sign of the index error, we have to check that when we are moving from the wrong PL, by wrong PL, I mean the PL having error, which in our case is the red position line, which formed one side of the triangle. So when you are moving from the wrong PL, that is the red PL, to the accurate PL. The accurate PL is the maroon color position line because it is the PL which is passing exactly from the fix. That's how the position line should be if it is accurately calculated. So when you are moving from the wrong PL, that is the red color PL, to the accurate PL, that is the maroon color PL, you have to see carefully whether you are going away from the body or you are going towards the body. Which body we are talking about? The body, the celestial body using which the PL was calculated. In our case, this celestial body is we going away from star 1 or towards star 1. So you can see this arrow indicates the direction in which we are moving, and it is very much clear that we are moving away from the celestial body, in this case the red color star 1. So in our case here, we are moving away from the body. Now, moving away from the body, what does that mean? If you are moving away from the body, that means the true zenith distance of the body should increase. Zenith distance is basically the distance or the arc between the zenith of the observer, which is represented by the position, and the celestial body. So if you are moving away from the star, that means the zenith distance of the body should also increase. Now we know that true zenith distance is 90 minus true altitude. So if we want the true zenith distance to increase, then the true altitude should be decreasing. If the true altitude decreases, then 90 minus true altitude, that is the true zenith distance, it is going to increase. And if the true zenith distance increases, this red PL will move towards the maroon color PL and it will become accurate. So we want the true altitude to decrease. Now for true altitude to decrease, the correction which we are applying should be negative. The correction which we are applying to the true altitude should be negative. So this tells us
that the index error which we are applying in this case should be negative. Now, index error is negative if it is on the arc. So when we are doing altitude correction, if the index error is on the arc, we subtract it. So the index error in this case is on the arc, so we will be subtracting it. When you subtract it, the true altitude would decrease. The value of the true altitude would be lesser. When true altitude decreases, the true zenith distance value would automatically increase. And with the true zenith distance increases, this red color PL, which was having an error, will be corrected, and you will have the accurate PL, which is the maroon color PL passing from the fix. So I'm going to repeat it once. The first thing which you have to see is when you are moving from the wrong PL or the PL having error to the accurate PL or the PL passing from the fix, are you moving away from the body or towards the body? In this case, we are moving away from the body. Moving away from the body, the true zenith distance should increase, which it can do only when the true altitude reduces or decreases. The true altitude would decrease when you have a negative correction, and a negative correction occurs when the index error is on the arc. So is this part clear, beta? Any doubt, let me know. I'll repeat again. तो इसको समझा दो, नहीं समझ आए अवित का वाला. ओके बेटा, ध्यान से देखो. You can mute your mic now. Yes, sir. ओके, हमें ये पता करना है कि इंडेक्स एरर ऑन द आर्क है या ऑफ द आर्क है. सबसे पहले हमें पता करना है एनी वन ऑफ द पीएल्स वी हैव टू पिक अप. हमने इस केस में पिक किया रेड कलर पीएल. इसके पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ की पासिंग फ्रॉम द फिक्स, जो ये मैरून कलर की लाइन है. नाउ दिस रेड पीएल हैज़ ए एरर इन इट, दैट्स व्हाई इट इज़ मेकिंग ए कॉक्ड हैट. अगर इसमें एरर ना होती तो ये मैरून पीएल होती, बिकॉज मैरून पीएल इज पासिंग फ्रॉम द फिक्स. नाउ टेल मी, अप टू हियर एनी डाउट? नहीं सर, वो इंडेक्स एरर आ गया डायरेक्शन. Very good. So red PL is the PL having error, maroon PL is the correct PL. Now next thing हमें देखनी है, अगर हमें wrong PL से accurate PL पे जाना है, are we going away from the body or towards the body? ये चीज़ हमें देखनी है. So when you go from red PL to the maroon PL, are you going away from the body or towards the body? The body is the one which is used to get the PL. अभी We are going away from the body. Now if we are going away from the body, that means the true zenith distance should increase, then only we can go away. True zenith distance is the arc between the zenith and the celestial body. The zenith has to lie on the PL somewhere, because zenith represents the position of the observer. If you are moving away, the zenith is moving away from the body, the TZD should increase. So TZD increasing, okay up to here? Okay. अब अगर TZD को increase करना है, TZD is equal to 90 minus true altitude. So that means true altitude should become less. True altitude Yes, will sir. become less if we have a negative correction. Index error negative कब होती है? When it is on the arc. So this tells us we have a index error which is on the arc. सर कितना बड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसको? सर अगर इसको सिंपली याद रखें कि इफ इट इज अवे इट शुड बी नेगेटिव, तो इट्स ओके. बेटा इफ यू कैन, मैंने आपको जितना सिंपल वे में समझाया जा सकता था समझा दिया.
अब आप इसे जैसे मर्जी याद रख लो, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। हाँ सर, अभी जैसे अभी आपने बताया ना, अभी इट्स अवे है, इट्स मतलब देखने से पता लगा इट्स अवे, अवे है तो नेगेटिव, अगर टूवर्ड्स है तो पॉजिटिव, इट्स फाइन। दैट्स राइट बेटा। सर Fine. ये जो Thank you. अभी सौरभ ने बोला ये बिल्कुल ठीक बोला है, मतलब अगर बॉडी से अवे जा रही है तो नेगेटिव में जाएगा ऑन द आर्क होगी, और पॉजिटिव उसकी तरफ जा रही है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही है। ठीक है सर। सर ये ऑफ वाले में कैसे होगा डायग्राम वैसे? ओके बेटा, वैसे दिमाग मत लगाओ उस पे क्योंकि डायग्राम तो ऑटोमेटिकली बन ही जाएगा व्हेन यू सॉल्व ए क्वेश्चन। आपने तो सिर्फ उसमें से इन्फ्रेंस निकालनी है। ओके बोलने को बोलोगे Okay, तो मैं बना भी दूंगा, बट इट विल अननेसेसरली कंफ्यूज यू, ठीक है सर, रहने दो सर। है ना। सो डोंट बॉदर अबाउट कि वो डायग्राम कैसे बनेगा। आप तो जैसा भी प्लॉट बना है उस प्लॉट में ये मेथड को अप्लाई कर दो एंड यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। ओके सर। Okay, all right. So with this, we finish off the cocked hat topic. So you can resolve the cocked hat now. You can find the index error also. अब बेटा morning class में you had some more doubts. Somebody had some doubt. Chetan, was it you? और शिवांग? कुछ और डाउट थे ना बेटा, बताओ क्या डाउट? मैंने पूछा था सर, एक क्वेश्चन में पढ़ रहा था कल, उसमें था व्हाट इज द कॉन्फॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ट व्हिच इज यूज्ड फॉर द मरीन नेविगेशन। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन क्या था, मतलब ओके बेटा, मैंने आपको एक और क्वेश्चन था। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको बेटा वन बाय वन। मैंने आपको फ्राइडे को एक थ्योरी क्वेश्चन का डॉक्यूमेंट भेजा था, राइट? पढ़ा आपने? नहीं सर, वो नहीं पढ़ा मैंने, वो मतलब नहीं किया अभी। बस उसको पढ़ो बेटा, उसके पेज नंबर 2 में इसी क्वेश्चन का आंसर लिखा है मैंने। अच्छा, अगर फिर भी समझ में ना आए, अगेन आस्क मी। हाँ, और सर एक और था, बोलो। ये सेम रिपीट में था, व्हाट इज अ कॉन्फॉर्मल और ऑर्थोमॉर्फिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ट व्हिच इज यूज्ड फॉर द मरीन नेविगेशन। ये दोनों के आंसर लिखे बेटा उसमें। ठीक है सर, ठीक है। ओके, सो अभी क्लास के बाद उसको खोल के देखो। और बताओ बेटा, और डाउट बताओ। सर और ये जो ट्वाइलाइट और ये सर्कमपोलर बॉडी है, इनके न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, वो मेरे को थोड़े से आते कम है, मतलब बस अगला काम वही करना बेटा हमने। आज का लेक्चर तो खत्म होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी मीट, आई एम गोइंग टू डू द सर्कमपोलर बॉडीज, और उसके अगला जो लेक्चर होगा उसमें आई एम गोइंग टू डू द रैशनल हॉराइजन डायग्राम क्वेश्चंस। सर ये जो बिलो लैटिट्यूड और अबव द पोल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये दो टाइप से आ रहे हैं। एक तो सर्कमपोलर बॉडी वाले आते हैं, और जो दूसरा वाला जो मतलब वैसे ही वो लोग डाल देते हैं जो दूसरे कॉन्सेप्ट से हो रहे हैं, जैसे मतलब जो बुक में सुब्रा में थे वो तो सारा सर्कमपोलर बॉडी के हैं, पर कुछ क्वेश्चन उससे अलग भी हैं सर। राइट, दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक सर्कमपोलर बॉडीज के आते हैं और एक रैशनल हॉराइजन पे बेस्ड आते हैं। अच्छा, और सर एक ये वाला टॉपिक भी है क्या अपने, जस्ट ये सिंपल एरर्स इन द साइट, ये थोड़ी है? नो, दिस टॉपिक इज नॉट इन द सिलेबस, लीव इट। ठीक है सर, ठीक है। ओके। और सर ये अपना नेचुरल स्केल वगैरह पे जो बेसिस क्वेश्चन है वो भी हम लोग करेंगे क्या? राइट बेटा, जब मैं रैशनल हॉराइजन के क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो उसमें स्केल पे बेस्ड वाले सवाल भी हमने करने हैं। ये दोनों आगे आने वाले टॉपिक्स हैं। सो मेरे पास बस अब ये 3 टॉपिक बचे हैं आपके। वन इज़ द सर्कमपोलर बॉडीज विच विल टेक 1 सेशन, देन द रैशनल हॉराइजन डायग्राम क्वेश्चन, और एक टॉपिक और है विच इज़ स्टार सूटेबल फॉर साइट। सो ये 3 टॉपिक हमारे बाकी हैं। सो आई विल फर्स्ट पिक अप स्टार सूटेबल फॉर साइट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है पेपर में, एंड देन वी विल मूव ऑन टू सर्कमपोलर एंड रैशनल हॉराइजन। ये आगे की सीक्वेंस रहेगी हमारी। और ट्वाइलाइट?
ट्वाइलाइट विल कम बेटा, स्टार सूटेबल फॉर साइट में ट्वाइलाइट भी है, स्टेलर मैग्नीट्यूड भी है, दोनों टॉपिक है। और सर एक बार ये समझा दें कि जो अभी आपने क्लास की स्टार्टिंग बताया था कि डीआर का जो है हमारी पोजीशन लाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो तो एक बार समझा सकते हैं सर वो? ओके, सो यू वांट टू फंडामेंटली अंडरस्टैंड कि अगर हमारी डीआर पोजीशन चेंज कर दें तो भी साइट सॉल्व करने में पीएल पे फर्क क्यों नहीं पड़ता है, राइट? यस सर। ओके बेटा, अभी बताता हूँ। Let's open up the whiteboard. ओके, लेट्स अज्यूम बेटा कि आप कौन सी साइट लेना चाहते हो, लॉन्ग बाय क्रोन, इंटरसेप्ट, एनी वन ऑफ योर चॉइस? इंटरसेप्ट ले लेते सर। ओके, हम इंटरसेप्ट साइट लेते हैं एंड दिस इज आवर डीआर लैटिट्यूड एंड दिस इज आवर डीआर लॉन्जिट्यूड। ओके, सो हमने इनको यूज़ किया डीआर लैट and this is the dr long. जब हमने इन दोनों को यूज़ किया हमें बॉडी का एजीमुथ मिला, let's say this is the azimuth which we got, intercept was let us say 2 miles away, this became the ITP and हमें हमारी ये PL जो है वो मिल गई। This is how we worked out our site, right बेटा? Okay, everything okay up to here? यस सर। अब बेटा हम ये कॉन्सेप्ट को ट्राई करना चाहते हैं कि अगर ये डीआर पोजीशन बदल दी जाए, डीआर लैटिट्यूड और डीआर लॉन्जिट्यूड को बदल दिया जाए तो भी पीएल सेम कैसे रहेगी। अब लेट्स से somebody else he works out this site with a different डीआर लैटिट्यूड, वो बोलता है जी मैंने तो ये वाला लैटिट्यूड लेना है, सो दिस इज माय ट्राइंग आउट लैटिट्यूड। ओके, आई वांट टू ट्राई आउट कि अगर मैं ये लैटिट्यूड लेता हूँ तो मेरी जो पीएल है वो कैसे बनेगी। लॉन्जिट्यूड भी अलग लेना है उसने, ही सेज आई एम गोइंग टू टेक दिस पर्टिकुलर लॉन्जिट्यूड नाउ, सो आई एम ट्राइंग आउट फाइंडिंग आउट दिस पीएल यूजिंग दिस लॉन्ग एंड दिस लैट। अब अगर बेटा इस लैट और लॉन्ग के साथ आप ये पीएल निकालोगे तो आपका जो इंटरसेप्ट है, ऑब्वियसली इंटरसेप्ट तो बदल जाएगा क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हमारा लैटिट्यूड भी यूज़ होता है, लॉन्जिट्यूड भी यूज़ होता है। Longitude is used in calculation of LHA which is required for P and latitude तो फॉर्मूले में डायरेक्टली यूज होता है, करेक्ट? यस सर। सो हमारी इंटरसेप्ट की वैल्यू बदल जाएगी। अब जब आप इंटरसेप्ट निकालोगे तो आपका जो इंटरसेप्ट आएगा वो इतना नहीं आएगा, आपका इंटरसेप्ट आएगा सिर्फ इतना। दिस इज द इंटरसेप्ट विच यू विल गेट फ्रॉम वर्किंग आउट यूअर साइट। और जब आप ये इंटरसेप्ट को डालोगे आप देखोगे यू विल रीच टू द सेम पोजीशन लाइन विच यू हैड प्लॉटेड। आप इसे प्रैक्टिकली भी वर्कआउट करके चेक करके देख सकते हो। कोई भी इंटरसेप्ट का क्वेश्चन निकाल लो, उसमें लैट लॉन्ग जो दे रखा है उससे थोड़ा सा डिफ़र कर लो और डिफ़र करके जो नया इंटरसेप्ट आए आप उसे प्लॉट करके देखो, आप देखोगे कि आपकी जो पीएल है वो हमेशा सेम रहेगी। So whether you use the blue color DR position or you use the red color trying out position, in both the cases, the position line is going to remain unchanged. ओके सर। सर ये इसमें एजमत वगैरह ऐसा नहीं कि अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं तो बॉडी की एजमत वगैरह चेंज हो जाएगी, और अगर एजमत चेंज होगी तो फिर उसका पोजीशन लाइन पे हमारा इफेक्ट पड़ेगा ना उसका? ओके बेटा यूजुअली आपका जो एजीमुथ है वो विद इन ए शॉर्ट डिस्टेंस चेंज नहीं होता। आपकी डीआर पोजीशन में 10 माइल, 20 माइल, 50 माइल का फर्क आ सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता ना? यस सर। Right? So even if you go 50 miles away,
the bearing of the celestial body, sun or moon or a planet or star, is not going to change. Okay? आप इसे अपने फॉर्मूले में भी डाल के देख सकते हो. ये जो दो पोजीशन ले रहे हो आप एक दूसरे के आसपास, आप दोनों केसेस में एजीमुथ निकाल के चेक करो. Tangent latitude upon tangent p, tangent declination upon sine of p, and you calculate the azimuth. You will see there will not be any practical difference between the azimuth of the body. Over a short distance, the azimuth of a celestial body does not change. कभी ट्रेन में बैठे हुए सन या मून को देखा है आपने? It keeps on moving with you, ना? Yes, sir. Right, the trees fall behind, but the sun and moon, if you are able to see it, let's say कभी ये ट्रेन की ड्राइव पे जा रहे हो, लॉन्ग ड्राइव पे, एंड इट्स ए मूनलिट नाइट, यू कैन सी द मून फ्रॉम योर विंडो. जैसे जैसे तुम्हारी ट्रेन चलेगी वैसे वैसे मून चलता रहेगा. द बियरिंग ऑफ द मून इज नॉट गोइंग टू चेंज. Yes, sir. राइट बेटा? एंड द रीजन व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इज क्योंकि मून इतनी दूर है आपसे that a little bit movement on the earth's surface, see how far the moon is the nearest body to us. moon के बाद फिर बाकी की bodies तो और भी ज़्यादा दूर हैं. Jupiter, Saturn, Venus, Mars are farther, Sun is farther than that. Alpha Centauri is 4 light years away. So moving a little bit here and there is not going to make a practical or decipherable change in the azimuth of the body. Okay, beta? Okay, sir. Okay, great. So we are almost done with our today's session, second session. So if there are no more doubts, then we call it off and I'll see you tomorrow. Tomorrow when I see you in the next class, मैं आपके साथ शुरू करूँगा stars suitable for sight. So ये एक टॉपिक है हमारा स्टार सुटेबल फॉर साइट, इसको पहले कवर करेंगे. देन वी मूव ऑन टू सर्कमपोलर बॉडीज एंड रैशनल हॉराइजन क्वेश्चंस. ओके सर. सर इस पे भी असाइनमेंट वगैरह है कुछ स्टैगर्ड पे या फिर प्रीवियस एक पेपर्स? नहीं बेटा, इसमें मैंने असाइनमेंट इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था, इन दैट वीडियो यू हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस. उनके सॉल्यूशन साथ में, so you can try them out, you can see the solutions there, and all of them are from phase 1 past papers. So just practice those questions and you should be good to go. Okay sir, thank you sir. Okay. Okay, so that's all for this session beta. See you in the next class. Till then, bye bye. Thank you, sir. Thank you.